Assalamu alaikum ji. Can you hear me? Yes, ma'am. ओके जी, और स्क्रीन विजिबल है? मैं लिख रही हूँ तो नजर आ रहा है? Yes, ma'am. Thank you. Okay ji, so in the previous lecture we were studying about multiplexers, which are the digital systems and also called mux. और इनकी वर्किंग क्या थी कि इफ देयर आर मल्टीपल इनपुट लाइंस एंड वन आउटपुट लाइन, then on the basis of some selection lines, one of the input is transmitted to the output. So based on this rule, mux can be identified by its size. So मैंने आपको बताया था कि mux can be a 2x1 mux, it could be a 4x1, 8x1, 16x1, or in general we can call it a 2 raised to power n cross 1 multiplexer. So every multiplexer will have two types of input lines: data lines. If it is a 4 cross 1 mux, then there would be 4 data lines, and there would be 2 selection lines corresponding to those data lines. These selection lines will decide which of the input will be transmitted to the output. So अगर आपके पास इस multiplexer में 4 data lines हैं, तो S1 S0 की input decide करेगी which of input would be transmitted to the output. So if S1 S0 is 0 0, then I0 would be transmitted to the output. If it is equal to 0 1, then I1 would be transmitted to the output. If 1 0, then I2 and 1 1, I3 would be transmitted to the output. इसको हमने implement किया था. Circuit diagram इसकी होगी कुछ इस तरीके से. There will be AND gates, and at the input of AND gates there would be selection lines along with the input line. So अगर selection enable होगा, अगर 0 0 है फॉर एग्जांपल, तो आपको सिलेक्शन लाइंस कुछ इस तरीके से अप्लाई करना होंगी S0 S1, and if S0 S1 would be 0 0, this gate, the output of this gate would depend on I0. So here we will get I0 if S0 is 0 and S1 is also equal to 0. Similarly, we can construct the inputs for logic gates, this second, third and fourth logic gate, and generate I1, I2, I3 accordingly. इन सबको combine किया था हमने using an OR gate. सिंगल OR गेट भी यूज किया जा सकता है और मल्टीपल OR गेट भी यूज किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी. जो हमने टेबल बनाया था मल्टीप्लेक्सर का, वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में था. S1 S0 एंड F. सिंप्लीफाइड टेबल कुछ इस तरह से था कि अगर 0 0 है तो आउटपुट वुड बी इक्वल टू I0, 0 1 है तो आउटपुट वुड बी इक्वल टू I1, 1 0 है तो आउटपुट वुड बी इक्वल टू I2 एंड 1 1 है तो आउटपुट वुड बी इक्वल टू I3. तो ये बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ द सिस्टम हम टू टेबल्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज अगर हम टू टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे तो देयर वुड बी 6 इनपुट्स एंड 2 raised to power 6 रोज फॉर द ट्रू टेबल. एक सेकेंड. जी सॉरी, आई एम बैक. सो 0 0 पे आउटपुट I0 आएगी. सो इसकी अगर हमें इक्वेशन लिखनी हो तो दिस इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज S1 बार S0 बार I0, यानी कि ये उस एंड गेट की इम्प्लीमेंटेशन है, उसकी प्रोडक्ट टर्म है, आप देख सकते हो. इसी तरह नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म होगी S1 बार S0 I1, देन नेक्स्ट प्रोडक्ट टर्म वुड बी S1 S0 बार I2, and next product term would be
S1 S0 I3 और इन सबको हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये सर्किट की बूलियन एक्सप्रेशन जनरेट हो जाएगा डायरेक्टली फ्रॉम द टेबल विदाउट डूइंग एनी फर्दर वर्क फॉर दिस. Earlier, we used to do it by making the complete truth table and constructing the K-map or writing the Boolean expression in standard form and then making the circuit. अब हम इसको थोड़ा सा हमने इतना ज़्यादा नॉलेज गेन कर लिया है कि हम इसको डायरेक्टली देख के भी अप्लाई कर सकते हैं. तो ये तो था मल्टीप्लेक्सर की वर्किंग जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे. अब हम ज़रा इसकी थोड़ी सी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं कि हाउ इट कैन बी यूज टू क्रिएट डिफरेंट अदर सर्किट्स ऑल्सो. एक तो सिलेक्शन की बेस पे है बट वी कैन इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन यूजिंग मल्टीप्लेक्सर. सो उसके लिए लेट्स डू सम एग्जांपल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक सर्किट बना रही हूँ और आपने उसका ट्रूथ टेबल बनाने की कोशिश करनी है. सो लेट्स से वी हैव एन 8x1 मार्क्स. S0, S1 and S2 or obviously there would be 8 inputs to that. अब मैं इनपुट्स का कनेक्शन ऐसे करने लगी हूँ कि लेट्स से these inputs are connected to ground and the remaining inputs, all of these are connected to plus 5 volt supply. Construct the truth table for this multiplexer. हाँ जी, any idea कैसे होगा? फंक्शन की आउटपुट लिखनी है हमने. What would be the output to this function? अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हम ये तो नहीं करेंगे कि 8 एंट्रीज इनपुट्स की लें और 3 एंट्रीज यहाँ से सिलेक्शन लाइंस की लें. इट विल मेक टोटल ऑफ 11 कॉलम्स और फिर आप 2^11 कॉम्बिनेशंस तो नहीं लिखेंगे. सो यू नीड टू कंसिडर ओनली द सिलेक्शन इनपुट्स एंड बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ द सिलेक्शन इनपुट यू विल डिसाइड व्हाट द आउटपुट वुड बी. सो सिलेक्शन इनपुट के सब पॉसिबल कॉम्बिनेशंस वी कैन राइट देम ओवर हियर. 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1. So these are all possible combinations for the selection inputs. Now what would be the output when input is 0 0 0? Can someone tell me? If S0 is 0, S1 is 0, S2 is 0, what should I write over here? 1 or 0? मैम यहाँ पे I0 नहीं आएगा जो इनपुट नंबर 1 है. Yes, and what is I0? +5 का मतलब हाई, लॉजिक हाई. सो विल राइट 1 ओवर हियर. ये हमने कैसे लिखा है? हमने देखा कि जब यहाँ पे 0 0 0 था तो बेस्ड ऑन द वर्किंग ऑफ एवरी मार्क्स I0 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट. सो अब आपने चेक करना है कि I0 पे क्या लगा हुआ है. I0 पे +5 की सप्लाई लगी हुई है. इसका मतलब है कि दिस इज लॉजिक हाई. लॉजिक हाई को या 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सप्लाई वोल्ट्स यूज करते हैं. यहाँ 5 यूज किया, इट कुड बी एनी अदर ऑल्सो. और 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए हम ग्राउंड यूज करते हैं. सो मैंने क्या किया हुआ है इस 8x1 मार्क्स में देयर आर सम इनपुट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू +5 वोल्ट्स एंड देयर आर सम इनपुट्स व्हिच आर कनेक्टेड टू ग्राउंड. तो इसका मतलब है कि जब सिलेक्शन 0 0 0 होगी तो आउटपुट विल डिपेंड ऑन दिस लाइन. उसके बाद जब सिलेक्शन 0 0 1 होगी तो आउटपुट वुड डिपेंड ऑन द नेक्स्ट लाइन. 0 1 0 पे नेक्स्ट लाइन एंड सो ऑन. तो इस केस में 0 0 1 एंड 0 1 0 फॉर ऑल दीज 3 इनपुट कॉम्बिनेशंस आउटपुट वुड बी इक्वल टू 1. क्यों 1 है? क्योंकि यहाँ पे भी 1 कनेक्टेड है, यहाँ पे भी 1 कनेक्टेड है और यहाँ पे भी 1 कनेक्टेड है. नाउ डू यू अंडरस्टैंड दैट फॉर इनपुट 0 1 1 यानी जब यहाँ पे सिलेक्शन 0 1 1 होगी तो इन दैट केस I3 would be transmitted to the output. This is I0, I1, I2 and this would be I3. तो ये आप यहाँ से भी देख सकते हो इसका बाइनरी इक्विवेलेंट 3 है.
तो ये 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग थर्ड लाइन है. So I3 would be transmitted to the output which is equal to 0. Similarly, for I4, we'll write 1 over here. For I5, we'll write 0 over here. For I6, we'll write 1 again over here. And for I7, we'll write 0 over here. तो ये बेसिकली हमने एक सर्किट एनालिसिस किया है कि सर्किट गिवन है और हमने उससे सर्किट की फंक्शनैलिटी को एक्सप्लेन किया है. दिस इज आल्सो द सर्किट एनालिसिस इन टर्म्स ऑफ डिजिटल डिजाइन. जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है जी. सो मूविंग ऑन, मैं एक फंक्शन लिख रही हूँ. हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग डिफरेंट मल्टीप्लेक्सर्स. So using this rule, we can implement any function using multiplexer. So implement using, let's give the condition के implement using 16 cross 1 mux. So function, let's take it. मैम 2 मिनट्स ऊपर करिएगा. जी. Let's say this is our given function. Thank you, ma'am. And we want to implement it using a multiplexer. सबसे आसान तरीका ये है कि अगर आपने फंक्शन को मल्टीप्लेक्सर से इम्प्लीमेंट करना है और आपके पास साइज गिवन है, फिर तो आपको अल्टीमेटली वही साइज का मक्स यूज़ करना पड़ेगा. बट सिंस वी आर सीइंग के प्रीवियसली जब ये इम्प्लीमेंटेशन हमने देखी है तो सिलेक्शन लाइन पे फंक्शन की इनपुट सप्लाई हुई है. तो अब अगर ये 4 इनपुट फंक्शन है तो सबसे इजी इम्प्लीमेंटेशन इसकी ये है कि हम ऐसा मल्टीप्लेक्सर यूज़ कर लें जिसकी 4 सिलेक्शन लाइन हो और फंक्शन की इनपुट लाइंस को हम एज सिलेक्शन लाइन कंसिडर कर लें. और फिर ये जो मिन टर्म्स गिवन है, इन पे फंक्शन 1 है तो इन मिन टर्म्स को हम हाई वोल्टेज से +5 से प्लस VDD से कनेक्ट कर दें और जो रिमेनिंग मिन टर्म्स हैं उनको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर दें. सो दिस इज़ वन ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन. मैं डिफरेंट और भी सिनेरियोज आपको बताती हूँ. पहले इसको करके देखते हैं. सो इफ़ वी वांट टू इम्प्लीमेंट इट यूजिंग 16 cross 1 mux, आई एम रिपीटिंग इट अगेन कि मैं 16 cross 1 mux क्यों चूज कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि मेरा 4 इनपुट फंक्शन था तो मुझे सिलेक्शन लाइन पे, ये मेरी सिलेक्शन लाइन थी. 16 cross 1 है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी 4 सिलेक्शन लाइंस. सो आई विल अप्लाई these inputs A, B, C, D at the selection lines. So A, B, be careful about the order of the input. A, B, C, D अगर आपने ऐसे लिखा है तो फिर आपका टेबल में भी A, B, C, D इस फॉर्म में ही होना चाहिए. अच्छा जी, अब there are 16 inputs. Obviously 16 cross 1 mux है तो inputs would be 16. So these would be 16 inputs starting from I0 to I15. अब मुझे इन इनपुट्स पे कुछ ऐसा अप्लाई करना है कि जब मैं आउटपुट पे फंक्शन क्रिएट करूं तो द फंक्शन वुड बी क्या होना चाहिए? 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 3, 4 पे 0, 5 पे 1, 6 पे 0, 7 पे 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13 पे 1, 14 पे 0 एंड 15 पे 0. ये होना चाहिए फंक्शन. ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि ये फंक्शन इम्प्लीमेंट करें यूजिंग 16 cross 1 मल्टीप्लेक्सर. ठीक है जी. तो अब हमारे पास 16 लाइंस अवेलेबल हैं और हमें ये भी पता है कि हमें आउटपुट पे क्या चाहिए. हमें 0 0 0 के लिए हमें आउटपुट पे चाहिए 1. तो व्हाट वी वुड डू इज कि हम I0 को 1 से कनेक्ट कर देंगे बिकॉज वी नो कि I0 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट व्हेन इनपुट इज 0 0 0 0. उसके बाद नेक्स्ट 0 0 0 1 पे भी हमें 1 चाहिए एंड 0 0
1 0 पे भी हमें 1 चाहिए। सो हम I0 उसके बाद I1 एंड I2 मैं यहीं पे कनेक्ट कर रही हूँ I2 इसको हम 1 से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट 2 वी नीड आउटपुट एज 0। सो अब हम क्या करेंगे, इसको हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट लाइन को हमने ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन अगेन शुड बी कनेक्टेड टू 1, तो इसको let's make it with a different color. So next 2 lines would be connected to ground. फिर नेक्स्ट लाइन शुड बी कनेक्टेड टू 1, तो ये 1 वाली लाइन यहाँ से हम ले लेते हैं। दिस शुड बी कनेक्टेड टू 1, फिर एक छोड़ के नेक्स्ट वुड बी कनेक्टेड टू 1। पहले सब 1 वाली कनेक्ट कर लेते हैं। सो अब ये क्या हो गया, I0 I1 I2 देन 3 4 भी हो गया। फिर ये 5 1 पे, 6 हमने 0 पे कनेक्ट करना है और ये हो गया 7। उसके बाद नेक्स्ट 5 लाइन्स वुड बी कनेक्टेड टू 0 और ये 13 इट शुड बी कनेक्टेड टू 1। तो ये 1 वाली हो गई हैं सारी। ये दिस वुड बी 0 1 2 5 7 and 13. So these would be connected to 1 according to the function we want to implement using multiplexer, और बाकी लाइंस हम 0 से कनेक्ट करेंगे। सो एक ये बच गई, बाकी ये 0 से कनेक्ट हो जाएगी और बाकी ये वाली लाइंस भी हम 0 से कनेक्ट कर देंगे। तो ये आपका फंक्शन इम्प्लीमेंट हो गया है यूजिंग 16x1 मल्टीप्लेक्सर। तो अब आपके पास कोई भी सिस्टम है, आपने उसका ट्रूथ टेबल बना लिया और आपको कहा जा रहा है कि उस सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें यूजिंग मल्टीप्लेक्सर, तो यू शुड बी एबल टू डू दैट। हमने फंक्शन को डिकोडर से भी इम्प्लीमेंट करके देखा है। सो एनी फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग द लॉजिक गेट्स, एनी फंक्शन कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग डिकोडर्स, and similarly any function can be implemented using multiplexers also. So एक तो मल्टीप्लेक्सर की ये एग्जैक्ट एप्लीकेशन है कि वो कंप्यूटर सिस्टम में, मेमोरी सिस्टम में, कम्युनिकेशन सिस्टम में मार्क्स यूज होते हैं to select the data from to one output line from the multiple input lines, और दूसरा ये कि आप एट हार्डवेयर लेवल इनको किसी भी फंक्शन की इम्प्लीमेंटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, कुछ और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। लेट्स टेक अनदर फंक्शन। अगेन वी आर टेकिंग अ 4 input function. It is equal to 0 2 4 6 9 13 14 and 15. So if we want to implement using 16x1 marks, तो मैं ज़बानी बता देती हूँ, फिर बाकी साइज के मल्टीप्लेक्सर से इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। So let's first construct the truth table for the function. सो ये ट्रूथ टेबल हम बना लेंगे और उसके बाद तो 0 पे 1 है, 1 पे 0 है, 2 पे 1 है, 3 पे 0 है, 4 पे 1 है, 5 पे 0 है, 6 पे 1 है, 7 पे 0 है, 8 पे 0 है, 9 पे 1 है, 10 पे 0 है, 11 पे 0 है, और उसके बाद जी हमारे पास
there are 4 more entries 0 0 0 1 1 0 and 1 1. So अब हमारे पास 13 14 and 15. So So 12 पे 0 है 13 14 एंड 15 इस पे 1 है. सो अब हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है. अगर हम इसे इम्प्लीमेंट करना चाहें यूजिंग 16 क्रॉस 1 मार्क्स तो हम क्या करेंगे 16 क्रॉस 1 मार्क्स पे विल जस्ट अप्लाई ए बी सी डी एट द सिलेक्शन लाइंस और हम 0 2 4 6 9 13 14 को प्लस VCC से कनेक्ट कर देंगे और बाकी की मिन टर्म्स को हम ग्राउंड से कनेक्ट कर देंगे एंड इट वुड बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन. सो जब तो फंक्शन का साइज सिलेक्शन लाइन के साइज से मैच कर रहा है तो हम इस तरीके से इजीली इम्प्लीमेंट कर लेंगे. बट व्हाट इफ आई वांट टू इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन यूजिंग 8 क्रॉस 1 मार्क्स. So now we would implement it using 8 cross 1 marks. तो 8 cross 1 marks का मतलब है कि हमारे पास जो मल्टीप्लेक्सर है there are 3 selection lines and there would be 8 data lines जो कि इनपुट पे अप्लाई होंगी फ्रॉम I0 I1 I2 एंड अप टिल I7. सो अब क्या करें इस केस में. अब आप ये देखो कि सिलेक्शन लाइन 3 है फंक्शन की इनपुट्स 4 है. सो व्हेन द फंक्शन हैज मोर इनपुट्स एज कंपेयर टू द सिलेक्शन लाइन अगर तो आप 32 क्रॉस 1 मार्क्स यूज करोगे जिसमें फंक्शन की इनपुट लाइंस 4 हैं और सिलेक्शन लाइंस 5 हैं तो उसमें तो आप इजीली कर सकते हो कि अगर आपने इसी को 32 क्रॉस 1 मार्क्स से इम्प्लीमेंट करना है तो क्या होगा देयर वुड बी 5 सिलेक्शन लाइंस S0 S1 S2 S3 S4. तो उसमें आप सिंपली करोगे A B C D को तो आप S3 S2 S1 और S0 से कनेक्ट कर दोगे. S4 को आप ग्राउंड कर दोगे वो 0 हो जाएगा. तो अगर आप इस टेबल के पीछे जितनी मर्जी जीरोस ऐड कर दो इट विल नॉट चेंज द implementation of the table. तो अगर तो size of the mux is larger than the size of input lines of the function तो issue नहीं है वो एडजस्ट हो जाएगा. बट अगर आपका मल्टीप्लेक्सर का साइज स्मॉल है एज कंपेयर टू द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस फॉर द फंक्शन तो हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा लॉजिक ऐड करनी पड़ेगी और थोड़ा सा इसको देख के इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. 3 लाइंस तो अवेलेबल हैं फॉर सिलेक्शन तो हम क्या करेंगे देयर आर मेनी वेज टू डू दैट. हम ये वाला तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं कि वील अप्लाई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द फंक्शन एट द सिलेक्शन लाइंस. सो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स क्या हैं A B और C. हम ये भी कर सकते थे कि B C और D को सिलेक्शन लाइन पे इम्प्लीमेंट करें बट आई लीव दैट अप टू यू. आप एक्सप्लोर करें वो आपको मिल जाएगा इजीली कि उसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है. और इवन हम ये भी कर सकते थे थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करने के लिए कि हम A एंड C एंड D को यहाँ पे अप्लाई करते और फिर बाकी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते. बट दैट वुड हैव बीन अ लिटिल ट्रिकियर. थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान से करना पड़ेगा और बिल्कुल डायरेक्टली नज़र नहीं आ रहा होगा. यहाँ पे हमें डायरेक्टली नज़र आएगा. हमें पता है कि 0 0 0 पे जब A और B और C 0 0 0 हैं तो I0 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट. अब ABC टेबल में कहाँ पे 0 0 है आप देख सकते हो फर्स्ट 2 रोज ऑफ द टेबल इसमें ABC 0 0 0 है. इसी तरह नेक्स्ट 2 रोज ऑफ द टेबल ABC 0 0 1 है. फॉर द नेक्स्ट 2 रोज ABC 0 1 0 0 1 1 एंड सो ऑन. तो अगर हम इसको पूरे टेबल को 2-2 रोज की ग्रुप्स में डिवाइड कर दें तो हम देख सकते हैं कि जब 0 0 0 होगा तो आउटपुट विल बी one of these two values. 0 0 1 पे आउटपुट should be one of these two values and so on. तो अब हम क्या करेंगे हमने जो मेथड अडॉप्ट किया है हमने मेथड ये अडॉप्ट किया है कि अप्लाई मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द फंक्शन ऑन द सिलेक्शन लाइंस
and write the Boolean expression of the output in terms of remaining inputs. So ABC तो apply हो गई remaining inputs of the function. फंक्शन की 4 इनपुट्स हैं, उसमें से मार्क्स में सिलेक्शन लाइंस 3 थी, सो हमने 3 इनपुट्स को सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई कर दिया. फिलहाल जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो हम ये यूज कर रहे हैं कि वी आर अप्लाइंग मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स ऑफ द फंक्शन ऑन द सिलेक्शन लाइंस, और उसके बाद जो बच गई हम आउटपुट फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ दैट इनपुट एक्सप्रेस करेंगे. और हम अब ये जो ग्रुप है, हमने कितने ग्रुप्स बना लिए हैं? हमने 8 ग्रुप्स बना लिए हैं अगर आप काउंट करें तो. ABC 00 के में 2 रोज हैं, नेक्स्ट टू रोज, तो देयर वुड बी टोटल 8 ग्रुप्स. सो बेसिकली ये जो 8 ग्रुप्स हैं इनसे हम ऐसा बूलियन एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि मक्स की 8 इनपुट्स पे अप्लाई होगा. सो I0 से I7 तक हमें एक्सप्रेशन लिखना है. सो I0 विल राइट I0 a boolean expression in terms of D. अगर तो एक से ज्यादा आउटपुट इनपुट लाइंस होती हैं और हमें बूलियन एक्सप्रेशन लिखना होता तो वी कुड हैव रिटन बूलियन एक्सप्रेशन एंड देन सिंप्लीफाइड यूजिंग बूलियन अलजेब्रा, और हम के मैप भी यूज कर सकते थे. बट यहाँ पे एक ही इनपुट है और आउटपुट को उसी एक इनपुट की फॉर्म में लिखना है, तो वी कैन जस्ट डू इट डायरेक्टली बाय ऑब्जर्वेशन. और वो ऑब्जर्वेशन क्या होगी, आप इस फंक्शन को देखें, ये हमने इसको एक्सप्रेस करना है. ये फर्स्ट ग्रुप का फंक्शन है जिसमें 1 और 0 दो आउटपुट्स आपको नजर आ रही हैं. सो इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ डी. तो आप जरा ऑब्जर्व करें कि जब डी 0 है, यहाँ पे जब डी 0 है तो f इज इक्वल टू 1, और जब डी 1 है तो f इज इक्वल टू 0. सो वी कैन जस्ट से कि f इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ d. तो I0 बेसिकली विल बी इक्वल टू d कॉम्प्लीमेंट. सिमिलरली I1 आप ऑब्जर्व करें, D0 है तो F1 है, D1 है तो F0 है. सो विच इज द बूलियन इक्विवेलेंट ऑफ या अलजेब्रिक इक्विवेलेंट ऑफ D कॉम्प्लीमेंट, के जब ऑपोजिट होता है तो D कॉम्प्लीमेंट होता है. सो I0, I1 एंड I2 ऑल ऑफ दीज एंड in fact I3 that will also be equal to D कॉम्प्लीमेंट. I4 would be equal to D. अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि हम कैसे रीड कर रहे हैं. जब D0 है तो F0 है, जब D1 है तो F1 है. सो I4 would be equal to D. I5 would be equal to 0 क्योंकि दोनों 0 हैं. वॉट एवर द वैल्यू of D is, output is equal to 0. तो this is equal to 0. I6 again equal to D and I7 is equal to 1. तो ये हमें मिल गया, थोड़ा सा बूलियन एक्सप्रेशंस मिल गए जो कि हमने इम्प्लीमेंट करने हैं एट द इनपुट ऑफ दिस मल्टीप्लेक्सर. ऑब्वियसली वी वुड बी नीडिंग सम लॉजिक गेट्स टू इम्प्लीमेंट दीज बूलियन एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो अब हमने फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है. फंक्शन इम्प्लीमेंट करने के लिए हम I0 हमें पता है D कॉम्प्लीमेंट है, तो हमारी इनपुट लाइन D है, उसके आगे लगेगा एक इन्वर्टर एंड दैट वुड बी अप्लाई टू I0. सिमिलरली I1, I2, I3 ऑल ऑफ दीज आर इक्वल टू D कॉम्प्लीमेंट, तो फिर मैं इसी लाइन को कनेक्ट कर दूंगी I2, I3 के साथ. I4 इज इक्वल टू D, तो यहाँ से I4 would be connected to D. I5 is equal to 0, तो यहाँ से मैं this is I5, तो I5 को मैं ग्राउंड से कनेक्ट कर दूंगी. I6 is D, तो यहाँ से D लेके it would be connected to I6 and I7 is equal to 1, तो फिर I7 पे मुझे प्लस 5 volts अप्लाई करना पड़ेगा. So this is the implementation of the function using 8x1 mux. The size of the function is the 4 input function and we are implementing it using 8x1 mux. जी, any questions? मैम आपने बूलियन एक्सप्रेशन कैसे लिखा है? मैंने टेबल को देख के D की वैल्यू को और F की वैल्यू को कंपेयर किया आपस में. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन D एंड F? मैंने टेबल से देख के लिखा है. यहाँ से देखें ना अगर, तो यहाँ पे इस ग्रुप में
आप देखें कि जब F1 है तो D 0 है और जब D 1 है तो F 0 है. So what is the relationship between F and D? मैंने डायरेक्टली यहाँ से रीड कर लिया क्योंकि सिंगल फंक्शन की टर्म्स में लिखना था ना. F को आई हैड टू राइट F ओनली इन टर्म्स ऑफ D. अगर एक से ज़्यादा की फॉर्म में लिखना होता विच वी विल डू इन द नेक्स्ट एग्जाम्पल तो फिर मुझे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती. बट यहाँ पे मैंने जस्ट रीड किया है कि जब D 0 था तो F 1 था और जब D 1 था तो F 0 है. ठीक है. ओके जैसे यहाँ पे देखो इस वाली ग्रुप में कि D whether it is 0 or it is 1 F is always equal to 0. तो मैंने यहाँ पे I5 को equal to 0 लिख दिया. सिमिलरली इस वाले केस में देखें whether D is equal to 0 और 1 always equal to 1 तो मैंने I7 को equal to 1 लिख दिया. जी और क्लियर. यस Okay जी, so let's implement the same function using 4x1 marks. ये इस एरिया की अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें. मैंने क्योंकि इसी फंक्शन को इम्प्लीमेंट करना है तो मैंने टेबल यूज़ करना है इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लें इफ़ यू वांट. मैं इसको इरेज करने लगी हूँ यहाँ से. जी ले लिया. So I assume it is done. So अब मैं करने लगी हूँ सेम फंक्शन को इम्प्लीमेंट यूजिंग 4x1 marks. अब 4x1 marks में the number of selection lines are 2 and the number of input lines are 4. तो अब ये जो 4 input lines हैं इस पे हमने क्या अप्लाई करना है कि हमारा जो आउटपुट पे फंक्शन है वो जनरेट हो जाए. we'll have to look into that. I think I'll make another table. मैं देख रही हूँ कि यहाँ से सिलेक्ट करके कट पेस्ट हो सकता है. अगर चलें बाद में एक्सप्लोर करूँगी. हम यहाँ पे टेबल ही दोबारा बना लेते हैं. इसका रीज़न ये है कि ओवरलैप होगा तो आपको कंफ्यूजन ना हो जाए. सो A B C D सेम फंक्शन हमने इम्प्लीमेंट करना है. सो फंक्शन की वैल्यू है 1 0 1 0 देन अगेन 1 0 1 0 फिर है जी 0 1 0 0 एंड देन 0 1 1 1. ये फंक्शन है. हमने इसको इम्प्लीमेंट करना है यूजिंग 4x1 marks. सो 4x1 marks की input lines would be 4 and selection lines would be 2. So अब हम क्या कर सकते हैं. हम अगेन मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स को उठा के अगर हम A B को सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई कर दें तो अब ज़रा आप तलाश करें कि A B अगर 0 0 है तो I0 would be transmitted to the output.
अब टेबल में से सर्च करें कि ए बी 0 0 किस रो के लिए है। सो हम क्लियरली देख सकते हैं कि 0 0 0 0 0 0 0 0 इन चारों रोज के लिए ए बी 0 0। सो अगर ए बी 0 0 होगा तो जो आउटपुट है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ सी एंड डी। इसी तरह जब ए बी 0 1 होगा तो इन चारों केसेस के लिए 0 1 0 1 0 1 ए बी 0 1 है तो आउटपुट अगेन डिपेंडेंट ऑन सी एंड डी और वो इन चार रोज ऑफ ट्रूथ टेबल को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सिमिलरली ए बी 1 0 इन चार रोज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है और 1 1 इन चार रोज को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। सो बाय अप्लाइंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ऑफ द टेबल ऑन द सिलेक्शन लाइन गिव्स अस द एडवांटेज कि जो रोज या जो वैल्यू सिलेक्शन लाइन की आउटपुट को कॉरेस्पॉन्ड कर रही होती हैं वो ज़रा एक कंसेक्टिवली टेबल में अपेयर हो रही होती हैं एज कंपेयर कि अगर मैं यहाँ पे सी डी अप्लाई कर दूँ तो जब सी डी 0 0 होगा तो वो ट्रूथ टेबल की किन रोज को कॉरेस्पॉन्ड करेगा। एक रो ये है सी डी 0 0 वाली, बाकी में तो सी डी 0 1 1 0 1 1 है ना, फिर एक रो ये है और एक ये है और एक ये है। सो आउटपुट वुड डिपेंड फॉर सी डी 0 0 आउटपुट वुड डिपेंड ऑन दिस रो, दिस कंप्लीट रो, दिस रो एंड दिस रो। सो आपको लिखने के लिए दोबारा से लिख के अलहदा से कैलकुलेशन करके यहाँ पे इनपुट पे अप्लाई करना पड़ेगा। दिस इज द ओनली डिफरेंस। या इसी तरह मैं बी सी अप्लाई कर दूँ तो फिर मुझे और केयरफुली देखना पड़ेगा कि बी सी 0 0 इधर है, उसके बाद बी सी 0 0 कहाँ पे है, इधर है, और मुझे देखना पड़ेगा कि बी एंड सी बोथ आर इक्वल टू 0 कहाँ कहाँ पे एग्जिस्ट करे, यहाँ पे भी है ये 0 0 और ये 0 0। सो दीज 4 विल बी यूज्ड देन। तो आपको ज़रा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट सिलेक्शन लाइन पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये होता है कि बस कंसेक्टिव रोज हमें टेबल पे नज़र आ जाती हैं, थोड़ा सा हमारी एफर्ट कम हो जाती है। अदरवाइज इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होगा अगर आप मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स के अलावा कोई और बिट्स अप्लाई करेंगे, तो वो आपने एक्सप्लोर करना है खुद से। तो अब हमने डिसाइड कर लिया कि ये 4 ग्रुप्स बन रहे हैं। इन 4 ग्रुप्स में से जो मार्क्स की इनपुट लाइंस हैं वो हर ग्रुप एक मार्क्स की इनपुट लाइन को डिसाइड करेगा। सो ये ग्रुप डिसाइड करेगा आई नॉट पे क्या अप्लाई करें, ये ग्रुप डिसाइड करेगा आई 1 पे क्या अप्लाई करें, ये ग्रुप डिसाइड करेगा आई 2 पे क्या अप्लाई करें और ये ग्रुप डिसाइड करेगा आई 3 पे क्या अप्लाई करें। तो अब जो है एफ वो डिपेंड कर रहा है, ए बी तो 0 0 है ना, फिक्स्ड है यहाँ पे, ए बी 0 0 है तो एफ डिपेंड कर रहा है सी एंड डी, द वैल्यू ऑफ सी एंड डी बोथ, यानी सी डी 0 0 0 1 1 0 1 1 हो तो आउटपुट आपके पास डिफरेंट आती है। तो अगर मैं इस पार्ट को, ये जो पार्ट है इसको मैं सेपरेटली एक 2 इनपुट फंक्शन कंसिडर कर लूँ, इसी तरह इस पार्ट को एक सेपरेट 2 इनपुट फंक्शन, क्योंकि इस पार्ट के लिए ए बी फिक्स्ड है, इस पार्ट के लिए भी ए बी फिक्स्ड है एंड सिमिलरली द रिमेनिंग पार्ट्स। तो इस ट्रूथ टेबल में हमने आई नॉट आई 1 आई 2 के लिए सिंपली सेपरेटली 2 इनपुट फंक्शंस डिफाइन कर लिए। अब 2 इनपुट फंक्शन को अगर मुझे आई नॉट का एक्सप्रेशन चाहिए 2 इनपुट फंक्शन के लिए, आई नीड एफ इन टर्म्स ऑफ सी डी, तो मेरे पास 2 तरीके हैं। एक तो ये कि मैं के मैप बना लूँ सी डी का, यहाँ पे सी एंड डी 0 1 0 1 और इस के मैप को फिल कर लूँ और एफ की वैल्यूज से, और फिर मेरे पास आउटपुट आ जाएगी। सो दिस वुड बी 1 0 1 एंड 0, ये मेरा के मैप बन जाएगा और इस के मैप से ये मेरे पास फंक्शन आ जाएगा। सो दिस वुड बी इक्वल टू डी बार, एफ वुड बी इक्वल टू डी बार फॉर दिस फंक्शन। तो मैं लिख दूंगी आई नॉट इज इक्वल टू डी बार। ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि अच्छा आपको नहीं समझ आ रही के मैप बनाना है या आपको ज़्यादा बड़ा लग रहा है, अभी यहाँ तो खैर छोटा सा के मैप बनेगा और सॉल्व हो जाएगा, बट व्हाट यू कैन डू इज यू राइट द स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन फॉर दैट एंड सिंप्लीफाई इट यूजिंग बूलियन अलजेब्रा। तो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन इसका क्या बनेगा, f इज इक्वल टू एफ, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 1 है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दिस वुड बी इक्वल टू सी बार डी बार प्लस सी डी बार, ये आ जाएगी स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हो, यहाँ से अगर आप डी बार कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा सी बार प्लस सी एंड यू नो दैट सी बार प्लस सी इज इक्वल टू 1, सो दिस वुड बी इक्वल टू डी बार। तो ये आपके पास इम्प्लीमेंटेशन आ जाएगी फंक्शन की
F would be equal to D bar and that would be applied to I naught. ठीक है जी. सो नेक्स्ट के लिए आप जरा कैलकुलेट करें खुद और मुझे बताएं I1 क्या होगा. जी स्टूडेंट्स, you can even tell by observation. I1 किसके इक्वल होगा? इसको देखे I नॉट के लिए F1010 था और यहाँ भी 1010 है. सो यही सेम मेथड अडॉप्ट करके ईदर के मैप और बुलियन अलजेब्रा यू वुड से I1 इज ऑल्सो इक्वल टू D बार. I2 किसके इक्वल होगा? शुड आई मेक अ के मैप फॉर I2? ये भी देखना पड़ेगा क्योंकि इसमें आप देख सकते हो 3 zeros हैं और एक 1 है. तो एक 1 का ग्रुप के मैप बनाने से सिंप्लीफिकेशन तो कोई अचीव नहीं होनी. सो देयर इज नो नीड टू मेक अ ग्रुप. I2 को हम यहाँ से डायरेक्टली रीड कर लेंगे. दिस वुड बी इक्वल टू C0 है तो C बार और साथ उसकी प्रोडक्ट टर्म जनरेट हो जाएगी C बार D. और इसी तरह I3 देख लें. अब I3 के लिए अगेन वी कैन adopt both methods C bar D plus C D bar plus C D. और यहाँ से आप देख लें आपने कॉमन लेके सॉल्व करना है तो D कॉमन ले लेंगे इसमें से और इसमें से अगर आप D कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा C plus C bar plus C D bar. ये 1 हो जाएगा एंड दिस वुड बी D plus C D bar. और इसको फर्दर ओपन कर लेंगे तो ये बन जाएगा D plus C D plus D bar. तो ये 1 हो जाएगा एंड दिस वुड बी इक्वल टू D plus C. और यू कैन कंस्ट्रक्ट द के मैप. के मैप में क्या होगा? 0 1 0 1 दिस वुड बी C D. तो ये क्या हो जाएगा? 0 1 1 1 के मैप बनेगा. एक ग्रुप ये बन जाएगा और एक ग्रुप ये बन जाएगा. So the output corresponding to this group ये it would be equal to C और इस vertical group की output होगी D. तो ये eventually C plus D can be written using Boolean algebra or using K-map or even you can observe कि ये OR gate का और function है ना. If one of the input is 1, output is equal to 1. तो अगर आप इसको भी किए बगैर और इसको भी किए बगैर इन दोनों के बगैर अगर आप डायरेक्टली ऑब्जर्व कर लेते हो कि I3 इज इक्वल टू C प्लस D तो दैट इज ऑल्सो फाइन. आइडिया ये है कि आपने कुछ बिट्स को सिलेक्शन लाइंस पे अप्लाई करना है और जो बाकी बच जाएंगी फंक्शन विल बी रिटर्न इन टर्म्स ऑफ द रिमेनिंग बिट्स और इवेंचुअली वो यही होगा कि जो ग्रुप्स बनेंगे द टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स विल बी इक्वल टू या ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया अलग अलग दैट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इनपुट लाइंस. तो अब हम इस फंक्शन को इम्प्लीमेंट करेंगे यूजिंग 4x1 mux. सो मैं इसको इधर ड्रॉ करती हूँ. 4x1 mux है. सिलेक्शन लाइंस पे मैंने A B अप्लाई किया है. ये आउटपुट लाइन है. अब I0 I1 I2 I3 पे मुझे एक्स्ट्रा लॉजिक यूज़ करके ऑब्वियसली आई हैव टू यूज़ सम एक्स्ट्रा लॉजिक गेट्स. तो वो एक्स्ट्रा लॉजिक यूज़ करके I0 पे आई विल अप्लाई D बार एंड I1 पे भी आई विल हैव टू अप्लाई D बार. I2 पे C बार D है तो एक एंड गेट यूज़ होगा जिसकी इनपुट पे C और यहाँ से आ जाएगा D और ये अप्लाई हो जाएगा यहाँ I2 पे. I3 पे और गेट यूज़ होगा जिस पे के D और C एज इनपुट अप्लाई होंगे. सो दिस वुड बी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंक्शन यूजिंग 4x1 mux. सो अगर आपके पास फंक्शन गिवन है आप उसको मक्स के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. वो आपने सिस्टम डिज़ाइन किया है. और अगर आपको सर्किट गिवन है कुछ लेट से यही वाला सर्किट गिवन होता है और मैं कहती हूँ कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर दिस सर्किट तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से रीड करोगे I0 जो भी है
वो अब आई नॉट के कॉरस्पॉन्डिंग ए बी सी डी 4 इनपुट फंक्शन का ट्रूथ टेबल बनेगा और एफ की वैल्यू डिपेंड करेगी जो भी इनपुट लाइंस पे गेट्स कनेक्टेड हैं उस पर डिपेंड करेगी. तो दिस इज हाउ विल इम्प्लीमेंट एनी फंक्शन यूजिंग द मल्टीप्लेक्सर ऑफ एनी साइज. जी, क्वेश्चंस? स्क्रीनशॉट ले लें. नेक्स्ट आई हैव टू टेल यू अ लिटिल मोर information. नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रही हूँ. Construct 4x1 marks using 2 to 4 line decoder and minimum extra logic. मिनिमम एक्स्ट्रा लॉजिक का मतलब है आप कुछ लॉजिक गेट्स साथ यूज कर सकते हो, लेकिन उन नंबर ऑफ लॉजिक गेट्स वुड बी मिनिमम, यानी देयर वुड बी मल्टीपल इम्प्लीमेंटेशंस. तो आपने वो इम्प्लीमेंटेशन कंसिडर करनी है जो कि जिसमें कि मिनिमम एक्स्ट्रा लॉजिक यूटिलाइज हो रही हो. जी, तो हमने डिकोडर से मार्क्स इम्प्लीमेंट करना है. अब ज़रा थोड़ा सा रिकॉल करें. 2 to 4 लाइन डिकोडर का इंटरनल सर्किट डायग्राम क्या था? ये 4 एंड गेट्स थे. D0, D1, D2, D3 जनरेट कर रहे थे. यहाँ पे हमने 0 0 0 1 1 0 यहाँ से आएगा और 1 1 ये इम्प्लीमेंट किया था. तो ये हमारा डिकोडर था. और मक्स का सर्किट रिकॉल करें अगर, तो 4x1 मक्स की बात कर रही हूँ. मक्स का सर्किट रिकॉल करें तो उसमें भी लॉजिक गेट्स थी, 4 एंड गेट्स, बट दे वर कंबाइंड यूजिंग और फंक्शन. और इन एंड गेट्स की इनपुट पे क्या था? सिलेक्शन लाइंस थी S0, S1 and along with that there is another input line I0. इसी तरह नेक्स्ट गेट की इनपुट पे सिलेक्शन लाइन थी और along with that I1 इम्प्लीमेंट किया हुआ था. इसी तरह नेक्स्ट गेट पे सिलेक्शन लाइन के साथ I2 था और नेक्स्ट गेट पे सिलेक्शन लाइन के साथ I3 था. तो अब मैंने जो आपको टास्क दिया वो टास्क ये है कि हमें ये वाला सर्किट इम्प्लीमेंट करना है. ये मक्स है यूजिंग दिस सर्किट, यानी हमें इस सर्किट को एज अ ब्लॉक उसमें इनकॉर्पोरेट करना है. तो जब भी अब ऐसा आपको, अब ये फंक्शनल ब्लॉक का एडवांटेज ही यही है कि जितनी फंक्शनैलिटी आप फंक्शनल ब्लॉक से इम्प्लीमेंट कर सकते हो उससे करो, और फिर जो इम्प्लीमेंट नहीं हो रही उसके लिए एक्स्ट्रा हार्डवेयर इंक्लूड कर दो. तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व कि ये जो 2 इनपुट एंड गेट्स हैं, यहाँ से ये इतना काम तो मुझे कर रहे हैं, यानी कि ये सिलेक्शन लाइन वाला काम जो है, ये सिलेक्शन लाइन वाला काम ये इस डिकोडर के थ्रू किया जा रहा है. अब मुझे सिर्फ ये करना है कि ये I0 को इनकॉर्पोरेट करवाना है. तो अब आप देख सकते हो मक्स में 3 इनपुट एंड गेट है, यहाँ पे 2 इनपुट एंड गेट है. तो व्हाट यू कैन डू इज आप लेंगे 2 to 4 लाइन डिकोडर. अगर तो सर्किट लेवल पे है, गेट लेवल पे है, फिर तो हम इसी तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे. फिर हम, लेकिन लेट से आपको कहा जा रहा है कि ये डिकोडर अवेलेबल है और इसको यूज करें टू कंस्ट्रक्ट अ मल्टीप्लेक्सर. तो इन दैट केस हाउ वुड वी प्रोसीड? डिकोडर की इनपुट पे S0 S1 अप्लाई कर देंगे. तो जब वो 0 0 होंगे, D0 सिलेक्ट होगा, D1 सिलेक्ट होगा, D2 एंड D3 सिलेक्ट होगा. और यहाँ पे हम 4 एक्स्ट्रा एंड गेट्स यूज करेंगे सच दैट एक एंड गेट की इनपुट पे I0 अप्लाई होगा, दूसरे पे I1, I2 एंड I3. अब जब 0 0 होगा तो दिस I0 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट. जब ये सिलेक्शन लाइन 0 1 होंगी डिकोडर की, तो हमें पता है कि इस डिकोडर ने, लेट से जब यहाँ 0 1 है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि ये आप उसमें कैसे लिख रहे हो ट्रूथ टेबल में. अगर आप ऐसे लिख रहे हो S1 S0 और आप इसको 0 0 0 1 कर रहे हो,
तो यहाँ पे फिर आपको S1 S0 इस तरीके से लिख के इसको MSB लिखना पड़ेगा, यानी ये मेंशन करना पड़ेगा कि ये MSB है या LSB है। सो यहाँ पे अगर मैंने S0 भी लिख दिया दैट इज ऑल्सो फाइन, लेकिन फिर मुझे ये लिखना पड़ेगा कि ये LSB है। सो जो भी आप लीस्ट सिग्निफिकेंट, LSB का मतलब है ये राइट साइड वाली बिट मैं लिख रही हूँ, MSB का मतलब है ये लेफ्ट साइड वाली बिट है। तो ये हमें ज़रा ख्याल रखना पड़ेगा। बट जब ये 0 है और ये बेसिकली मैं बात कर रही हूँ, अगर मैं इस ऑर्डर में लिख रही हूँ तो ये 1 0 है, यहाँ पे टेबल के मुताबिक ये 1 0 है, तो हमारी ये वाली लाइन एक्टिवेट होगी डिकोडर की अगर मैं इनपुट्स पे इस तरीके से अप्लाई करती हूँ। तो जब ये लाइन एक्टिवेट होगी तो I2 वुड बी ट्रांसमिटेड टू द आउटपुट। तो अब अगर सिंपली मैं यहाँ पे आगे एक और गेट लगा दूँ तो ये मेरा मल्टीप्लेक्सर बन जाएगा यूजिंग डिकोडर। So similarly we can construct the any size of multiplexer using decoder, but decoder का फिर appropriate size होना चाहिए। जी ठीक है, this is all for today. Any questions? जी स्क्रीनशॉट। मैम ऐड गेट के कनेक्शन जरा रिपीट कर दिएगा कैसे किए आप? ये 3 इनपुट एंड गेट है ना मक्स में, 3 इनपुट्स आ रही हैं, एक S0 से आ रही है, एक S1 से आ रही है और एक I0 है। तो जो 3 इनपुट एंड है बेसिकली आपने ये किया है कि एक 2 इनपुट एंड की इम्प्लीमेंटेशन पहले ही अवेलेबल थी, उसको कंबाइन कर दिया है I0 के साथ। तो 3 इनपुट एंड को आई हैव रिटन दिस 3 इनपुट एंड एज सीरीज कनेक्शन ऑफ 2 इनपुट एंड गेट्स। जी क्लियर हुआ है? जी बेटा क्लियर हुआ है आपको? आर यू देयर? यस मैम क्लियर हो गया, थैंक यू। Yes, ma'am. जी एनी अदर क्वेश्चन? चलें जी, दिस इज ऑल No, ma'am. फॉर टुडे। इंशाल्लाह फिर अब हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।